welcome all of you to our weekly program. And today's wonderful topic is scientific benefits of mantra meditation. Yeah, so all of us are, I hope I'm clearly audible and visible. Yes? Yeah, okay. Okay, thank you so much. Okay, so all of us, we are chanting this Hare Krishna Mahamantra. And from all these days of chanting, you all must have realized or had some questions that what is scientific benefit of this chanting, why we are doing this, is there any scientific backup for this chanting? So yeah, so today, to dive into this topic, we have a very special personality with us, Mr. Dr. Ashish Gupta sir, and he'll be explaining more about this topic today, and in many details also. So before calling upon sir for presenting, I'd just like to introduce him in a brief. Yeah, I'll just share my screen. I hope you can see my screen. Yes? Yes, yes, visible. Yeah, thank you. So yes, so Dr. Ashish Gupta sir, he is a neuroscientist and mindfulness coach, and currently sir is at IIT Kanpur. He is a PhD scholar in the field of cognitive neuroscience, working in the area of brain sciences, and about his education, led by an inner call to understand and solve the fundamental mysteries of basic sciences. Sir pursued his BTech and MTech from IIT Kharagpur in biotechnology to understand life, origin, and cognition. So the very things that we also saw in our device course. Sir, as I told, he is a PhD scholar now at IIT Kanpur, and he has published his research about how music can increase brain efficiency. So that research was published in the Nature magazine. It's one of the most famous British weekly scientist journal, a leading magazine of Britain. And he also has started a company known as Embrix Private Limited. This is a mind brain research institute and also provides coaching services. As a pioneer company in the field of mind and brain research and coaching brain sciences, Sir has also experience of decades in counseling and guiding people in their personal development through the through the chanting that we every day do, through the mantra meditation process. So yeah, I'm really thankful to sir for giving out his time to all of us, despite his busy schedule. So yes, I now would like to welcome sir to to the group of uh, first years here at HGGS IENT. Uh, yes, over to you, sir, Ashish sir. I am visible to Yes, everyone. sir. Okay. Prabhu, I think you have to make me host, Bhargav, Prabhu. Yeah, yes, sir. Share my screen thereafter. So, dear friends, good morning, everyone. I think most of you are first year student, right? You can all interact as we go through our session. You can chat through chat box also. You can mention. Yeah. Mohit, good morning. Venkatesh, yes. Good morning. Also, you can mention today, right? So Rishikesh, yes, right? Okay, Dhyaneshwar, yes. Priyanshu, good morning, right? How is the situation? I think most of you are at home, right? We are at home, everyone. Yeah, Mohit, yes, everyone home. Yes, Venkatesh, Rushi, Shreyash, Amit, right? Divyanshu, Shailesh. So I welcome you for today's very important session. And the world which is right now we are going through from the last 1 year has changed dramatically. Uh, right? And we really don't know how long things would go on like this, but certainly the world has changed from what it used to be to a greater extent. Just let me share my screen with you.
I think it's visible to everybody, right? Yes, sir, visible. Okay. And as we go ahead, anybody want to speak, contribute, are open to speak, because the more you contribute, the more you hear openly, the more you will learn these concepts, which we are going to share with you. See, in our life, generally, there are two things which play a very vital role in anything we do. The first is what vision we have of our life, what motivates us, right? Whatever vision we have, whatever motivates us, that defines how we go ahead in our life. For example, I tell you, in UP, you will find government job is considered to be all in all. While I'm from MP, currently I'm at UP and MP, the private sector is good enough for people. So based on the upbringing, based on the vision, people finalize this is what they're supposed to goal in their life. But an underlying thing behind our vision is faith. You must have gone through Discover Yourself courses and many discussion. Faith is one element which is actually behind everything what we do. Whether we do consciously or unconsciously, everything is actually to some or greater extent is controlled by faith. Right? Even say, for example, all of us are chanting Hare Krishna and doing some meditation. To some or the greater extent, it is the faith we have that will determine how good we do that. It is the faith you have in whatever you practice or do will determine how good you do. And therefore, when you want to do something nice in the world, nice in your life, you want to contribute something, or you want to change your life or do something nice thing, you need to make sure that what you do, you develop a proper solid faith, right? A proper solid faith. So as we right, many of you are, when you mention chat box, you can always rename yourself. And as I mentioned, as you as I ask you questions, you can ask, you can reply in chat box, or you can also open a window. At the end, we will certainly would like to see all of your faces, smiling faces and windows, as if now you can write in a chat box. So we are going to discuss one of the hot topic which we are going through throughout the current scenario. Question to all of you: what is the real wealth we have? हमारी सबसे अच्छी wealth क्या है? Right? What is the real wealth we have? Ourself, moral values, okay. Yeah, you can share more things. Real wealth we have, which can actually do everything. Health, okay. Health, God, okay. Real wealth we have. Or in simple terms, I've asked you, what is one thing you have which, if you use properly, you can create a revolution in the world? What is one thing you have, if used properly, you can create a revolution in the world? Now, some of you are coming closer. Salish has given the answer brain. Okay, further ideas, time. All of you are right to some extent. That's perfectly okay. Magnesh has told mind. Focus, faith, intelligence, all are now getting close, right? Something you have to answer from a practical life. आप सब लोग अपने लाइफ से आंसर इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से आप एक चीज कंट्रोल कर ले अपने लाइफ में तो सब कुछ हो जाएगा, राइट? सब कुछ मतलब आपका पढ़ाई से लेके सक्सेस से लेके सब चीज बैलेंस हो जाएगी, एक चीज अगर आप प्रॉपर कर लें, राइट? सो what answers you gave more or less are all are right. The topic which you are focusing is the center to what all you have told. That's mind or brain, which is currently the biggest problem in the scenario. आपने देखा होगा सुशांत सर के केस के बाद, या इरा खान ने जो अपना ओपन किया है, इन सब के केस के बाद one thing has become clear, that every one of us going through some kind of issue everyone is facing. Now question to you, next question to you, ये क्या है, ये figure क्या है? Some of you would like to say, some of you can even open and speak it also. What is this figure? Can anybody explain?
Burden of information. Okay, Vinayak is saying burden of information. Right? हाँ, आप लोग अपने लाइफ से भी रिलेट कर सकते हैं. किसी को ऐसा एक्सपीरियंस होता है, जैसे विनायक ने कहा, बहुत इंफॉर्मेशन होने के बाद ऐसा लगता है, राइट? बर्डन ऑफ थॉट. ओके, इट इज अ स्टैच्यू ऑफ ए पर्सन विद बिग ब्रेन. बहुत बड़ा ब्रेन हो गया, इतना बड़ा हो गया कि संभाला नहीं आ रहा है, भारी दिमाग. ओके, बर्डन ऑफ थॉट. आप में से किसी का ऐसा एक्सपीरियंस हुआ अपने लाइफ में, इस तरह की सिचुएशन, जैसा आप इस व्यक्ति को देख रहे हैं? ओके, यस, रितेश इज सेइंग यस, राइट? मोहित यस, देवकी नंदन यस. ये आप देखेंगे, कोई कहे ना कहे, whether somebody speaks or not, ये करंट सिचुएशन में ही चल रहा है. प्रैक्टिकली हर दिन हमें 70 GB ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है. हमारे ब्रेन को इतना प्रोसेस करना पड़ता है. समटाइम्स इवन आप देखिए, आधा घंटा व्यक्ति पढ़ता है, उसकी पूरी एनर्जी एग्जॉस्ट हो जाती है. विद इन हाफ एन आवर ही सेट्स. आप सबका एक्सपीरियंस है, आप पढ़ने बैठते हैं, प्लान रहता है बहुत पढ़ेंगे, 2 घंटा 3 घंटा, 15-20 मिनट होता है कि नहीं, आपको लगता है एग्जॉस्ट, राइट? सेइंग यस, वित्तल यस, राइट? आदित्य यस. वी ऑल हैव एक्सपीरियंस. ये आपको छुपाने की जरूरत नहीं है, हम सब ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस समय. इस सिचुएशन ही करंटली वर्ल्ड की ऐसी चल रही है. वी मे वांट टू डू सो मेनी थिंग्स, लेकिन हमें बांध के रख दिया गया है. हमारा जो ग्रेटेस्ट वेल्थ, जो मैनी ऑफ यू टोल्ड, माइंड, ब्रेन एंड एक्सेट्रा, वो वेल्थ को हम यूटिलाइज ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारा जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है वो इस समय वीकेस्ट बना हुआ है. जो मेंटल स्ट्रेंथ या मेंटल हेल्थ या ब्रेन हेल्थ जो हम सबको सक्सेस दिला सकता है, वो इस समय एक सबसे बड़ा वीकेस्ट पॉइंट बना हुआ है. सो कमिंग बैक टू दिस फिगर, तो आप ये देख रहे हैं कि इसका दिमाग बहुत बढ़ गया है, ओवरफिल्ड, ओवर थिंकिंग या एग्जॉस्ट हो गया ये पर्सन. और हम सब इस एक्सपीरियंस से जाते हैं. ये करंट सिचुएशन भी दिखा रहा है, जहां पर आप देखेंगे, ऑल ऑफ यू आर क्वाइट यंग. when 2002, when I was of your age, maybe 2004 roundabout, उस समय इंटरनेट इतना ज्यादा नहीं चलता था. So we were more into outside world, playing around and talking to people, spending time. इस समय लोग सबके सब अलग हो गए हैं, अकेले हो गए हैं, आइसोलेट हो गए हैं. जस्ट लाइक मेनी ऑफ यू आर स्टेइंग एट होम, सबके सब आइसोलेट हो गए, और कोविड ने इसको और ज्यादा बढ़ा दिया है. लेकिन हमारा ब्रेन कंटिन्यूसली काम कर रहा है, राइट? करंट डिजिटल वर्ल्ड में आप देखिए, इंफॉर्मेशन इतना ज्यादा आ रहा है कि कंटिन्यूसली हमारा ब्रेन काम कर रहा है. बाकी बॉडी पार्ट्स रिलेटिवली बहुत कम एक्टिव है. और सिचुएशन जो आप इस व्यक्ति के देख रहे हैं कि इम्बैलेंस चल रहा है, राइट? इवन जो लोग जिम जाते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, आप देखिए, जिम जाकर अपनी बॉडी तो मेंटेन कर ले रहे हैं, लेकिन उससे ज्यादा इस समय सबको जरूरत है मेंटल जिम की, राइट? ऑल ऑफ यू एग्री विद मी व्हाट आई से? वी ऑल डू फील एग्जॉस्टेड, एंड इस समय करंट सिचुएशन में सबसे ज्यादा हमारा प्रेशर क्रिएट हो रहा है ब्रेन पे. हम यूटिलाइज ब्रेन को ही सबसे ज्यादा कर रहे हैं. सुबह उठने के साथ पढ़ाई करेंगे, फिर उसके लिए लैपटॉप चाहिए, क्लासेस चलना उसके लिए लैपटॉप चाहिए, हम डिस्कशन कर रहे हैं, फिर लैपटॉप चाहिए, उसके बाद थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया या कुछ भी करते हुए आप देखिए, मोटा मोटी ब्रेन यूज होता है. अभी कुछ रिसर्च के पेपर्स आएंगे, आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे. ऑब्वियसली वी कैन नॉट कवर एवरीथिंग, वी मे फाइंड सम अदर टाइम और डे, वी विल कवर फर्दर थिंग्स. लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं टच कर रहा हूँ. सो जस्ट बी केयरफुल एंड कीप आंसरिंग. समबडी कैन रीड दिस. कोई पढ़ सकता है इसको? कोई भी पढ़ सकता है. For decades, हाँ. one of the mysteries of neuroscience has been the energy consumption rate of the brain. Though it represents only 2% of our body's mass, it consumes 20% of its energy. It consumes the same amount of energy whether engaged in a demanding task or at rest. Right. So जस्ट लाइक यूनिवर्स, आपने देखा होगा, जो लोग भी साइंस को बहुत पसंद करते हैं, आप देखें यूनिवर्स एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है, और दूसरा मिस्ट्री आपके साथ, आपके ऊपर ही बैठा हुआ है, आपका ब्रेन, राइट? तो बहुत समय से रिसर्च चल रहा था कि आखिर ब्रेन कितना एनर्जी कंज्यूम करता है. उसका रिलेटिवली फिजिकल स्ट्रक्चर 2% ऑफ द बॉडी है, लेकिन वो एनर्जी करता है 20%, राइट?
अच्छा, अमेजिंग चीज ये नहीं है कि वो 20% कर रहा है, अमेजिंग चीज ये है आपका हाथ तभी एनर्जी कंज्यूम करता है जब आप हाथ से कुछ करते हैं। जब आप हाथ से कुछ नहीं करते हैं, मानिए, फिर भी हाथ एनर्जी कंज्यूम नहीं करता है। लेकिन ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है, आप कुछ करें या ना करें, वो एनर्जी कंज्यूम कर रहा है लगातार, राइट? यानी कई बार आप देखें किसी बच्चे को बहुत अच्छा है, उसको आप छोड़ के जाते हैं, कुछ काम नहीं देते, थोड़ी देर बाद आके देखते हैं वो थक गया है। क्यों थक गया है पता नहीं। आप लोग अपने आप को भी देखते होंगे, थोड़ा-सा बिना कुछ किए घर में रहकर भी हम लोग कई बार थक जाते हैं, या करंटली आप देखेंगे कि एक कॉमन अंडरलाइन जो बेसलाइन थकावट सबके अंदर है। ऑल ऑफ यू एग्री? एक बेसलाइन लेथार्जी, लेजीनेस या एग्जॉशन सबके अंदर है, राइट? हम सब थोड़ा एग्जॉस्ट हमेशा थ्रू आउट द डे फील कर रहे हैं, और उसका एक बहुत बड़ा कारण है, वो है हमारा ब्रेन जो कि कंटिन्यूअसली काम कर रहा है, एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है। All of you can write, most of you are writing message privately to me. You can also write in everyone column, so that बाकी लोग भी इंस्पायर होते हैं लिखने के लिए, और उनको भी पता चलता है क्या क्या ऑप्शंस आ रहे हैं। So most of you say yes, yes, yes. So Rohit is saying inertia, right? So अभी हम देखते हैं और कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट स्टडीज, उसके बाद आपको आगे इस पे डिस्कस करते हैं। हाँ, somebody, अच्छा, निर्मल, कैन यू टेल समथिंग अबाउट यू, जो आप कहाँ से हैं और अभी क्या कर रहे हैं? Yes, yes. Myself, Nirmal Waghela. I am actually basically from natively Gujarat, but right now I am staying in Daman, and I'm just going to complete my masters from National Institute of Pharmaceutical Education and Research from the Department of Biotechnology. ओके 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 ओके। Yeah. सो और कोई पढ़ेगा इसको? somebody can read? First years. Yes, sir. हाँ, रितेश आप कहाँ से हैं? अपना थोड़ा इंट्रो देंगे, बाकी सबको पता चलेगा। Yes, sir. Myself, Ritesh Doifure. I am हाँ from district Nagpur. My हाँ village name is Telkamti. हाँ, ओके I am the first year students of AGGS Nanded. ओके, यस रितेश, कैन यू रीड? Yes, sir. Task positive network. A set of brain regions called the task positive network or TPN gears up to conduct the task, like the parietal lobe and the lateral prefrontal cortex. These handle functions like working memory, cognitive awareness, and attention. Hmm. If you are reading in comics or staring at the flowers in the garden with your TPN dormant, your brain is still consuming 20% of your body's energy. Not MRI research shows the brain's energy usage really varies from 5% up or down in the course of the day. राइट। सो ये एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ था। देखिए, टास्क पॉजिटिव नेटवर्क मतलब कि आप कुछ पर्टिकुलर कोई टास्क करें, यू हैव डिसाइड कि आपको कुछ टास्क करना है। नेचुरली ब्रेन के वो एरियाज, जैसे मानिए पैराइटल लोब होता है, जो कि सारे एरिया को स्कैन करता रहता है, और स्कैन करने के बाद आपकी ओरिएंटेशन, कैसे एक्शन होना चाहिए, उसको डिफाइन करता है। प्रीफ्रंटल सोचने में काम आता है, ये सब एक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन कई बार आप रिलैक्स होके बैठ जाइए, कॉमिक्स पढ़िए या गार्डन में मूव करिए, टीपीएन काम नहीं कर रहा है, कोई आप काम नहीं कर रहे हैं, टास्क पॉजिटिव नहीं कर रहे हैं, टीपीएन एक्टिव नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आपका एनर्जी कंज्यूम हो रहा है मोर और लेस 20%। और ये 1991 में रिसर्चर्स को पता चल गया था, जब वो बहुत रिसर्च कर रहे थे अलग अलग नेटवर्क्स पे, उन्हें एक चीज समझ में आई कि जब लोग काम करें या काम ना करें, दोनों ही केस में एनर्जी कंज्यूम हो रही है, और मोर और लेस सेम एनर्जी कंज्यूम हो रही है, राइट? हाँ, इसको कोई पढ़ेगा रितेश के अलावा? somebody would like to read? So may I? Yes. Default mode network. It turns out that when you are doing nothing, your brain is not inert. It's highly active, but it's running on autopilot with a set of regions called the default mode network, or DMN, fired up. DMN is what our brain defaults to when it's not engaged in
a task like creating a spreadsheet or kicking a soccer ball or playing chess. When we are mentally at rest, our TPN shuts down while our DMN kicks in, keeping our brain running at 2000 RPM even though we are not doing any specific mental task. राइट आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने टॉपिक रखा था जो हमारे सेशन का टॉपिक था रेसिंग योर कार्स इंजन इन द पार्किंग लॉट। कहने का मतलब है कि आप कहीं से अपनी कार लेके गए, मार्केट में गए, शॉपिंग किया, सब कुछ किया, वापस आए, पार्किंग लॉट में रख दिया और कार के इंजन को बंद करना छोड़ दिया, बंद करना भूल गए, तो क्या होगा वेंकटेश? क्या होगा कार के इंजन को बंद नहीं करेंगे तो? कंटिन्यू फ्यूल बर्न होगा, कंटिन्यूसली फ्यूल बर्न हो जाएगा, राइट? अब अगर आप ये सोचिए, हमारा ब्रेन मोर और लेस हम यही करते हैं। टीपीएन वो होता है एरिया जब एक्टिवेट हो जाता है जब आप कुछ काम करते हैं, और हमारे ब्रेन का एक डिफॉल्ट मोड नेटवर्क है, वो तब एक्टिवेट है जब आप कुछ नहीं करते हैं। आपको मैं सिंपल सा उदाहरण देता हूँ। आई रिमेम्बर जब मैं उस समय 2004 में मैं वापस आया था कोटा से अपनी आईआईटी की तैयारी करके, और हमने फॉर्म भर दिए थे AIEEE और IIT-JEE का, राइट? उस समय AIEEE अलग होता था, तो फॉर्म IIT का भर के भेज दिया था। AIEEE में एक कोई सेक्शन था जो मुझे थोड़ा सा डाउट था, मैंने सोचा अपने फादर से पूछूंगा, और उस सेक्शन को मैंने छोड़ दिया था। और उसके बाद मुझे उस दिन एक दिन याद आया जब मैंने फॉर्म सबमिट कर दिया कि मैंने वो भरा कि नहीं भरा। मैं बहुत खुश था, अपनी पढ़ाई कर रहा था, IIT AIEEE दोनों मेरे लाइफ के जो एग्जामिनेशंस वो बस आ ही गए थे, और दोनों की तैयारी कर रहा था मैं। अचानक से मैं छत पे बैठा था, ये थॉट आया कि मैंने वो फॉर्म भरा ठीक से कि नहीं भरा। अगला थॉट आया, मैं रेस्ट पे था, कोई काम नहीं कर रहा था। अगला थॉट आया, IIT में होगा कि नहीं होगा ये मुझे पता नहीं। अगर IIT में तो मालूम नहीं हुआ, AIEEE का फॉर्म भी रिजेक्ट हो गया, तो फिर मेरा क्या होगा? मैंने और 12th में तो तैयारी की नहीं कि मैं BSc के अच्छे कॉलेज में जा पाऊंगा, और दोनों कॉलेज में अगर नहीं हुआ तो फिर मेरे को अच्छा सा जॉब नहीं मिलेगा, अच्छा जॉब नहीं मिलेगा तो मेरा फैमिली कैसे बनाऊंगा, मैरिज कैसे होगा, और फिर आगे कैसे होगा। मैं 17-18 साल का लड़का वहाँ अपनी एक छोटी सी सिचुएशन में अपने अगले 20 साल तक की चीजें सोचने लगा कि अभी ये रिजेक्ट हो गया है, मानिए मैंने फॉर्म गलत भरा है तो वहाँ से रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा तो मैंने 2 ही फॉर्म भरे हैं, क्योंकि MP का जो PET एग्जाम होता था वो तो मैं भरा ही नहीं था, उसका सिलेबस थोड़ा अलग था, मैंने उसका फॉर्म ही नहीं भरा था। तो MP PET का भरा नहीं है, और ये वाला हुआ नहीं है, IIT का पता नहीं, ये होगा नहीं। आधे घंटे में वो थॉट कैंसर की तरह पूरे ब्रेन में फैल गया। दोपहर होते होते सर दर्द होने लगा, रात को मुझे पिल्स भी खानी पड़ती। कई बार आपने देखा होगा हमारे लाइफ में ऐसा हो जाता है, हम सोना चाहते हैं, दिन में किसी से लड़ाई करके आ गया, कुछ ऐसा थॉट आ गया है, ये पार्ट इससे बात कर रहा है, वो इससे बात कर रहा है, ये इससे बात कर रहा है, लगातार कॉस्ट टॉक चल रहा है। देखने के लिए पेरेंट्स को लग रहा है मैं पढ़ रहा हूँ, सबको लग रहा है मैं नॉर्मल हूँ, लेकिन मुझे पता है कि मेरा कितना बुरी हालत से एक्सर्शन हो रहा है। आई डिडंट मूव एनीवेयर, पर जितनी एनर्जी थी मैंने 2-3 घंटे में सब एग्जॉस्ट कर दी। किस किस का एक्सपीरियंस है ऐसा? हाथ उठाइए, मतलब हैंड रेज भी कर सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो या उसमें चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, राइट? सो ऑल ऑफ यू 100% आर, मोस्ट ऑफ यू आर हैविंग दिस एक्सपीरियंस कि हम सबका ये खतरनाक एक्सपीरियंस है कि हम केवल और केवल बैठे बैठे पूरा एनर्जी जितना हमने पूरा कलेक्ट किया सब एग्जॉस्ट। अच्छा, आयरनी क्या है, मेरे एग्जाम आने वाला है, मेरे को तो सीरियस होकर ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरे हाथ में ही नहीं है और मैं पूरी एनर्जी खो दिया, राइट? पूरी एनर्जी। और ये करंट सिचुएशन में आप देखेंगे, आपके चाहे इंटर्न्स, जैसे आज का एग्जामिनेशन हो, जैसे आप लोग का मैंने सुनना है कि आप लोग को इवनिंग में क्लास टेस्ट चल रहे हैं, इंटरनल एग्जामिनेशंस या एक्सटर्नल एग्जामिनेशंस, या कोई भी लाइफ में इंटरव्यू हो रहा है, मोर देन द एग्जामिनेशन का जो पहले का सिचुएशन होता है, हम इतनी एनर्जी एग्जॉस्ट कर देते हैं कि वहां तक की हमारी एनर्जी रहती ही नहीं है, और हम फील करते हैं एनर्जी नहीं है, ताकत ही नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड्स, DMN या जिसके कारण हमको स्ट्रेस हो जाता है, this is, whether we know or not, WHO has considered it to be the number 1 enemy of health of the people. आप लोगों ने, कई लोग ने हेल्थ का आंसर किया था, सबका नंबर 1 एनर्जी है। कैंसर का नंबर 1 कॉज स्ट्रेस है,
और स्ट्रेस को अगर कोई कंट्रोल कर लेता है, अपने माइंड को कंट्रोल कर लेता है, तो कैंसर रिवर्स हो जाता है। रिवर्स इन द सेंस बहुत रिकवरी हो जाती है। सिमिलरली 9 out of 10 people who are going through any physical disease, the root cause is their brain. All of you agree with me or not, right? हम कोई भी डिसीज या कोई भी चीज से स्ट्रगल कर रहे हैं, 9 out of 10 thing is the origin is brain. The origin is our stress, right? So Bhushan says, Mohit says yes, Vijay says yes, right? आप सब मैक्सिमम लोग प्राइवेट ही भेज रहे हैं. You can also send me publicly, no problem. राइट, देवकी नंदन से यस. हमारा 9 out of 10, तो जो मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग टॉक किया था कि हमारा वेल्थ हमारा ब्रेन है. दैट वेल्थ विच इज एक्चुअली आवर ब्रेन हैज बिकम इन द करंट सिचुएशन आवर वीकेस्ट लिंक. हमारा वेल्थ जो हमारा ब्रेन जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग वेल्थ होना चाहिए, राइट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. तो हमारा वेल्थ जो हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग लिंक होना चाहिए, वो इस समय हमारा वीकेस्ट पॉइंट बना हुआ है करंट सिनेरियो में, राइट. सो नाउ लेट मी रीड फर्दर. सो कैन एनीबॉडी रीड दिस रिसर्च पेपर, आप जिसको पढ़ना है. अच्छा, वेंकटेश ने लास्ट टाइम, वेंकटेश आप कहाँ से, क्या कर रहे हैं, कुछ बताएंगे? Sir, I am from Aurangabad, first year Okay. student, SGGS Nanded. Okay, good. Aurangabad. So Aurangabad means okay, fine. Maharashtra, right? Yes, sir. Right, because MP में एक होशंगाबाद है. Sometimes I get confused. Yeah, somebody can read this. कोई भी पढ़ सकते हैं. Sorry. ध्यानेश्वर पढ़ेंगे आप? Yes, sir. हाँ, ध्यानेश्वर. Marshall Silache and the Dark Energy of the Brain. The mystery discovery, Rasley conducting the PET, positron emission tomography scan on the brain of the subject engaged in concentrated mental activities and on those of a control group at rest. To this puzzlement, the brain scan of the control group show increased activity in certain areas when doing nothing. Dark energy of the brain. The brain is actually just as busy when we relax as when we focus on a difficult task. The default mode network DMN is the most active area of the brain. Richley also called it is the dark energy of the brain. Right. So रिशले का रिसर्च हुआ था, जहां पर जैसे बताया, इस समय आज के लिए क्या करंटली क्या सिचुएशन है फ्रेंड्स, कि आपके पास प्रैक्टिकली यू हैव एवरी डिवाइस कि आप ब्रेन के अंदर क्या चल रहा है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं. देयर आर मशीन्स लाइक एफएमआरआई, पीईटी, ईईजी मशीन, जिसपे मैं काम करता हूँ, वो ईईजी मशीन है. ब्रेन पूरा ट्रैक किया जा सकता है. तो ऋषि ने जब रिसर्च किया था, उसके रिसर्च में क्या हो रहा था, जो मैं आपको बताया था 1990s की बात है, कि ही वॉज एक्चुअली ट्राइंग टू फिगर इट आउट कि कोई भी टास्क में कौन सा ब्रेन एक्टिव होता है. लेकिन उसके कंटिन्यूसली रिसर्च में एक चीज आ रही थी कि जब बिना टास्क के भी एक ब्रेन एक्टिव है और पूरे टास्क के दौरान भी कुछ एक पार्ट है जो हमेशा एक्टिव है, और जब टास्क रोक दो ज्यादा एक्टिव हो जाता है. तो उसने फिर इसको काम किया, ये साइंस जर्नल पब्लिश हुआ था, और ये उसको उसने टर्म दिया था डार्क एनर्जी ऑफ द ब्रेन. जस्ट लाइक यूनिवर्स हैज ए डार्क एनर्जी, हमने सुना होगा, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, डार्क मैटर, जहां से हमारा एनर्जी कंज्यूम हो जाता है, यूनिवर्स का मैक्सिमम, ब्लैक होल्स वगैरह. उसी तरह उसने ब्रेन को कहा डार्क एनर्जी, क्योंकि यहाँ प्रैक्टिकली सबका एनर्जी कंज्यूम हो जाता है. इट्स कंप्लीटली सक्ड अप, लोग एग्जॉस्ट हो जाते हैं. और इसको उसने, जैसे मैंने आपको बताया, दैट्स ए डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, और जिसके बारे में हमने अभी थोड़ा सा चर्चा भी किया, राइट. सो दैट्स द डार्क एनर्जी ऑफ द ब्रेन. अभी अपन देखते हैं और इसके बारे में थोड़ा. अच्छा, इस डार्क एनर्जी के कनेक्शंस, कुछ स्पेशल कनेक्शंस होते हैं इमोशन सेंटर से. यानी जैसे जैसे आपने देखा, मैंने अपनी स्टोरी सुनाई, मुझे अपने फॉर्म का ये याद आया कि मैंने भरा कि नहीं भरा,
और जैसे ही मुझे ये याद आया कि मैंने भरा कि नहीं भरा, मेरे इमोशंस एक्टिवेट हुए। तो उसके स्पेशली इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है, इसलिए कई बार आप देखिए पूरे के पूरे इमोशंस चोक्ड हो जाते हैं। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। ये एग्जांपल है, मैं जब आईआईटी खड़गपुर में पढ़ रहा था तो मैं रेगुलरली एनआईटी जमशेदपुर ट्रैवल करता था। और जब मैं एनआईटी जमशेदपुर ट्रैवल करता था तो उस समय एक वन ऑफ द टॉक जो मैं यूथ्स को दे रहा था, उसके टॉक के बाद एक लड़का मेरे पास आया था, उसके हाथ में कुछ निशान था। तो हाथ में निशान देख के मुझे डाउट तो हो गया कि भाई क्या है, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने क्लास के बाद उससे पूछा और आई जस्ट चेक्ड विद हिम एंड आई आस्क्ड हिम व्हाट इज दिस एक्चुअल मार्क इज। सो ही टोल्ड मी सर एक्चुअली जब मैं क्लास 12th में था आई वाज फीलिंग सो डिप्रेस्ड, सो लोनली, आइसोलेटेड कि प्रैक्टिकली मैंने आई ट्राइड कमिटेड सुसाइड। मैं बाथरूम में गया और ब्लेड से काटी, उसी का निशान है। मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले देन एट दैट मोमेंट लकीली मेरे मामा खिड़की से देख लिया, मुझे बचा के लेके आ गए। और जब वो बचा के लेके आ गए तो अभी मैंने कहा अभी कहाँ? बोला अभी एनआईटी जमशेदपुर में पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा अभी तो तुम्हारे पास बहुत टाइम है, कोई है भी नहीं, ना कोई मामा ना कोई चाचा, एकदम अकेले, अब क्यों नहीं कर सकते हो? तो बोला सर अब फील नहीं आता। राइट, अब उसे फील नहीं आता। क्या फील नहीं आता? बोला सर मुझे उस समय ऐसी फीलिंग आ रही थी, यानी ये छोटा सा एरिया ब्रेन हमारा ऐसी फीलिंग दे दिया, ऐसी फीलिंग दे दिया कि मुझे प्रैक्टिकली लगा कोई मुझे प्यार नहीं करता, कुछ मेरे से नहीं होगा, कुछ भी नहीं कर सकता मैं। और अब मुझे सब नॉर्मल है। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, कभी कभी हम सुबह उठते हैं और उठते साथ हमें लगता है दुनिया मुट्ठी में, मैं सब कर लूंगा, सब हो जाएगा मेरे से, मैं आई एम वेरी गुड एंड आई कैन डू इट। और किसी दिन हम उठते हैं, हमसे लगता है कुछ नहीं होने वाला, क्या होगा मेरा, एकदम मोरोज हो जाते हैं। ऑल ऑफ यू एग्री विद मी? मोहित ने कहा उनके साथ मैं कई बार एक्सपीरियंस हुआ है। वैष्णव यस, देविकी नंदन यस, वेंकटेश यस। राइट, ऑल ऑफ ए सडन हम हमारे साथ क्या हो रहा है हमें पता ही नहीं है। से आप प्रॉब्लम को पता करें तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग वर्ल्ड में इतनी बड़ी बड़ी चीजें करने की प्लान करते हैं, लेकिन हम जिस प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं उसके बारे में पता ही नहीं है। ऋषिकेश सेज यस, प्रशांत सेज यस। अच्छा, आपको पता है, मेरे ख्याल से आपके सीनियर्स ने, कई लोग ने एक्सप्लेन किया होगा, आपको हाथी को कैसे बांध के रखते हैं, पता है किसी को? somebody can say हाथी को कैसे बांध के रखते हैं? उसका एक पैर बांध देते हैं। मैं हाँ, या सर, हाथी को बचपन से ही एक स्ट्रॉन्ग जंजीर से बांधा जाता है ताकि उसके ब्रेन पे एक इम्पैक्ट पड़ जाए कि वो जंजीर उसे टूट नहीं सकती। जबकि बड़े होने के बाद वो जंजीर उसको आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन उसके मेंटल इम्पैक्ट की वजह से वो उसे कभी तोड़ता ही नहीं। हाँ, सो रोहित को इसके बारे में पता है। आप लोग ने देखा नहीं होगा, एक्सपीरियंस नहीं किया होगा, बट कभी आप हाथी को देखेंगे तो कई बार आप पाएंगे कि उनको रस्सी से ही बांध के रखा, बड़े बड़े हाथी को। राइट, कभी रस्सी से बांधे, कभी जंजीर से बांधे। उसका कारण ये था कि जैसे रोहित ने बताया कि जब वो छोटे थे तो उनको रस्सी जंजीर से बांध के रखा गया था, और उस समय उन्होंने बहुत ट्राई किया, बहुत ट्राई किया, लेकिन टूटा ही नहीं। जब वो रस्सी जंजीर टूटी ही नहीं तो नेचुरली क्या हो गया, उसके दिमाग में आ गया कि मुझे यहाँ एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से ये टूटेगा नहीं। और अब वो बड़ा हो गया, वो हाथी पेड़ भी उखाड़ सकता है, दीवार तोड़ सकता है, जंजीर और रस्सी तो ऐसे ही उखाड़ देगा, लेकिन उसके दिमाग में बैठा है कि ये होगा नहीं। हम सबका फ्रेंड्स सबसे पावरफुल वेल्थ हमारा माइंड है, ब्रेन है। अगर उसको हमने कैप्चर किया कैसे यूटिलाइज करना है, वी कैन डू मिरेकल इन द वर्ल्ड। और उसको अगर हमने नहीं संभाल पाए, इवन यू मे हैव सो मेनी, जैसे आप सब में से कई लोग को लगता होगा सर मेरे पास एक्चुअली बहुत क्वालिटीज है, बहुत कैपेबिलिटी है, बट मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही। मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ या चाहती हूँ जैसे भी, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। और आप सबको उसका रूट कॉज पता है कि आपको पकड़ के एग्जॉस्ट करके आपके ब्रेन ने रखा है। राइट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। मुझे बस 1 सेकेंड दीजिए, मैं पीपीटी शेयर चेंज कर रहा हूँ।
So I think screen aage, right? So this is racing your car's engine into the parking lot, right? Can anybody read this? कोई पढ़ सकता है इसको? Sir, may I? हाँ, yes, Vijay. To track a wandering mind is an unhappy mind. To track people's state of mind during their waking hours, two Harvard psychologists developed a smartphone app that contracted volunteers at random intervals. What they found was that people spent about 47% of their time in negativity. The researchers wrote, a human mind is a wandering mind, and a wandering mind is an unhappy mind. When their TPNs were not focused on a task, their DMNs were focused on the self, immersed in their personal stories rather than the present moment. Right? तो ये बहुत बड़ा रिसर्च किया गया था इसका। इसमें करीबन 2000 स्टडीज एक साथ की गई थी। हार्वर्ड ने स्मार्टफोन एप्स बनाए थे, अलग अलग बैचेस ग्रुप्स में चालू हो गया था, और लोगों से लिखाया गया कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, वहां पे क्या काम कर रहे हैं, रेगुलर टाइम इंटरवल डे में आप लिखिए कि ये कर रहे हैं और आपको कैसा फील हो रहा है। रिजल्ट्स क्या आए? पार्टिसिपेंट इन द स्टडी वेयर लीस्ट हैप्पी व्हेन दे वर डूइंग वन ऑफ दीज थिंग्स। बहुत दुखी थे कब? जब वो अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल में काम करते हैं। आपने खुद देखा होगा, हम लोग मोबाइल को कॉन्स्टेंटली यूज करते हैं लेकिन हम खुश नहीं होते उससे, राइट? कॉन्स्टेंटली यूज करते हैं और दुखी थे। सेकेंड, व्हेन दे वर डूइंग वर्क, जब अपना काम भी कर रहे थे तो फोकस नहीं कर पा रहे थे, दे वर प्रैक्टिकली अनेबल टू फोकस। आप देखिए, आप पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन पढ़ने जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं, राइट? तो उनके रिसर्च में ये आया था, एक्चुअली इट्स ए रिसर्च, ये सेकंड रिसर्च हार्वर्ड का था, कि मोर और लेस 50% ऑफ द टाइम लोग नेगेटिव सोचते हैं दिन में। 50% ऑफ द टाइम, यानी 50% ऑफ एनर्जी इज गॉन इन थिंकिंग नेगेटिव। रिमेनिंग 50 में 20 to 25% डिस्ट्रैक्टिव होता है, यानी आप काम करना भी चाहते हैं लेकिन कहीं और डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। सो ऑन एन एवरेज 75% ऑफ एन इंडिविजुअल काम करता ही नहीं है। यानी आप कुछ करना चाहते हैं, से फॉर एग्जांपल आप स्टडी करना चाहते हैं, या इवन अभी अपन डिस्कस करेंगे और चीजें, कुछ भी करना चाहते हैं, आपके ब्रेन की, आपकी एनर्जी की 75% एनर्जी खत्म है, राइट? इट्स गॉन, राइट? 75% एफिशिएंसी। आप देखिए, अगर एक कंट्री है जहां पे हर एक इंडिविजुअल का 75% नहीं काम कर रहा है, हाउ एज ए कम्युनिटी वी आर सफरिंग। सरप्राइजिंग थिंग क्या था कि ये दो चीज तो समझ में आ गया, लोग काम कर रहे हैं या कंप्यूटर में है तो बहुत दुखी थे। अच्छा, बट द थर्ड one was surprising, resting. Why were they were most happy when at rest? Without tasks to occupy their mind, the demon took over, recycling its endless unhappy absorption in self. तीसरे टाइम जब वो बहुत दुखी थे, वो थे रेस्ट। यानी आपने कोविड में देखा होगा, इस समय करेंटली हम सब काफी ज्यादा ब्रेन के इश्यूज को डील कर रहे हैं, जबकि ऐसे होना चाहिए कि भाई सब लोग घर में हैं, रिलैक्स हैं, रेस्ट करो, क्या दिक्कत है? बट नहीं, वो ज्यादा बड़ा इश्यू बन गया है। हमारे ब्रेन का डीमन एक्टिवेट हो गया है, और वो इतना एक्टिव रहता है कि प्रैक्टिकली हमें एग्जॉस्ट करके रखता है, हम अनहैप्पी हैं। अच्छा, व्हेन दे एस्केप्ड द डीमन्स फिक्सेशन ऑन द पास्ट एंड फ्यूचर, दे केम टू प्रेजेंट मोमेंट। कब खुश थे? जब हैप्पी मोमेंट वेयर एक्सपीरियंस, जब वो एक्सरसाइज कर रहे थे, दे वर एक्सचेंजिंग सम लव, और दे वर चैटिंग विद ए फ्रेंड और डीलिंग्स। ये वो टाइम था जब वो खुश थे। आप अपने दिन में भी देखेंगे, जितना टाइम आप कंप्यूटर, लैपटॉप में दुखी हैं, काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, दुखी हैं, इवन रेस्ट कर रहे हैं, दुखी हैं। जब आप कुछ फिजिकल पॉजिटिव चीज पे चले जाते हैं तो आप थोड़े से खुश हो जाते हैं, राइट? फ्रेंड्स, मैं आपको एक सो प्रैक्टिकली 70% ऑफ द टाइम इट गोज इनटू वे। मैं आपको एक छोटा सा, मेरी स्क्रीन आ रही है, राइट? Yes, sir. ओके। और उनका ये आया कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम हो रही थी उनको, वो थी माइंड वंडरिंग की, राइट? द मी शो, राइट? मी शो अभी अपन चर्चा करते हैं। दिस इज जस्ट आपको थोड़ा मजा करने के लिए।
आई थिंक नहीं चला वीडियो, राइट? ओके, एनी हाउ ये आपका ब्रेन है, ये चल जाएगा। मेरे ख्याल से कनेक्शन में कुछ इशू आ गया होगा। ये आपका ब्रेन है, और अभी अपन स्क्रीन आ रही है आपके साथ पास? Yes, sir. ओके ओके, राइट। तो ये देखिए ये हो क्या रहा है। ये वाला हमारा चल नहीं पाया था, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, फिर से इसी में फंस गया। राइट, आपको जब तक ये ओके, सो ये देखिए ये हमारा ब्रेन है पूरा पूरा, राइट। ये जो पार्ट है वो है हमारा एमिगडाला। मैंने आपको नीचे फिगर दिखाया था, ये ब्रेन है हमारा। अच्छा, हम लोग कभी देखेंगे नहीं, लेकिन ये मशीन्स के थ्रू आप आजकल करंट मशीन के थ्रू आप देख सकते हैं। ये जो पार्ट है, छोटा सा पार्ट है एमिगडाला। ये एमिगडाला पार्ट क्या होता है, जब भी आप एंशियस हो जाते हो, घबरा जाते हो, तो ये एक्टिव हो जाता है। करंट वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इतना ज्यादा डिजिटल इंफॉर्मेशन आ रही हैं, इतनी ज्यादा चीजें लगातार चेंज हो रही हैं कि हम लोग उस चेंज के साथ कोप अप ही नहीं कर पाते। जैसे मैंने आपको बताया, प्रैक्टिकली 70 GB ऑफ इंफॉर्मेशन एवरीडे हम पे फ्लोट हो रहा है। और ये क्या कर रहा है, कंटिन्यूअसली एमिगडाला। देखिए ये मैकेनिज्म आप समझ जाएंगे तो कुछ हद तक आप जितना अच्छे से चीजों को समझेंगे उतना अच्छे से आप अपने आप को हेल्प कर पाएंगे। और अगली बार जब आप स्ट्रेस या एंजाइटी में होंगे तो आपको पता चल जाए क्या हो रहा है। होता क्या है, जैसे ही आप इस तरह के फ्लक्स में घूमते हैं तो आपका ये एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है। वो एक्टिवेट क्या करता है, आपके हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस वो एरिया ब्रेन का है जहां पे बहुत सारी मेमोरीज हैं, उन सबको खींच लेता है, उन सबको एक्टिवेट कर देता है। अच्छा, क्योंकि ये एंजाइटी या स्ट्रेस लेवल से एक्टिवेट हुआ है, आप एंशियस रहते डे में, तो वही मेमोरीज आ जाती हैं। वो मेमोरीज यहाँ पे पीसीसी एक एरिया होता है, वो जाके उसको आगे आपके ये जो ये वाला एरिया है, ये आपके सोचने वाला एरिया जिससे आप सोचते हैं, तो वही मेमोरीज को वो फ्रंट लोब में डाल देता है। फ्रंटल लोब हमारा ये होता है जहां से हम सोचते हैं, और रिजल्ट क्या होता है, हम एंशियस सोचते हैं। आप समझ रहे पूरी साइकिल। हमारा एमिगडाला, यहां से देखिए, हम कॉन्स्टेंटली एक स्केरी अनप्लेजेंट फीलिंग को महसूस करते हैं। ये क्यों महसूस करते हैं, क्योंकि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हम लोग अपने आप को इस तरह ट्रेन कर लिए हैं कि हमारा ये पार्ट एक्टिवेट बहुत रहता है। इसके कारण क्या होता है कि आपको एक अनप्लेजेंट फीलिंग कॉन्स्टेंटली महसूस, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था, कॉन्स्टेंटली आपको लगता है थोड़ा सा वीकनेस, कॉन्स्टेंटली लगता है कोई इंस्पिरेशन नहीं, कॉन्स्टेंटली लगता है लेथार्जी, कॉन्स्टेंटली लगता है एनर्जी नहीं है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि 50% ऑफ नेगेटिविटी, तो ये सारे कारण से ये वाला पार्ट हमारा कॉन्स्टेंटली एक्टिवेट रहता है, जो कि इस तरह की फीलिंग्स को जनरेट करता है। इससे क्या होता है, हमारी वैसी ही मेमोरीज एक्टिवेट हो जाती हैं। हमारे पास बहुत पॉजिटिव मेमोरीज भी हैं, लेकिन 75% ऑफ टाइम ये मेमोरीज एक्टिवेट होती हैं जो कि फ्रंटल लोब में देती हैं, और हमारे सोचने का विचार भी वैसा ही हो जाता है। आपको ये पता नहीं होगा, गैरी कैस्परो को आप जानते हैं? गैरी कैस्परो कौन कौन जानता है, कौन नहीं जानता है? तो हमारे देखिए परसिस्टेंट डिप्रेसिव एंशियस थॉट्स एंड फीलिंग रहता है, चालू साइकिल यहां से होता है। गैरी कैस्परो कौन जानता है? सब लोग जानते हैं कि नहीं जानते? चेस प्लेयर, ग्रेटेस्ट चेस प्लेयर? नो, ओके, राइट, जस्ट 1 मिनट। बहुत लोग को नहीं पता, विश्वनाथ आनंद को तो जानते होंगे ना आप? विश्वनाथ आनंद इंडिया का चेस प्लेयर नंबर 1, राइट? Vishwanath Anand is the India's chess player number 1. Gary Kasparov is the world number 1 chess player. और आपको पता है
ही इज ऑलरेडी सेवरल टाइम्स गैरी कैस्परो ने वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता। रिसेंटली जब एक बार वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रही थी, अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 महीना बाकी था, उसको केवल ये थॉट आया कि चैंपियनशिप आ रही है, ही इज ऑलरेडी नंबर 1। वो इतना ज्यादा एंशियस हो गया, इतना ज्यादा एंशियस हो गया, उसने 3 महीने में, कुछ ही मंथ में 10 केजी लूज कर दिया। यानी वो चीज जो कि आजकल लोग जिम जाकर एक्सरसाइज करके डाइटिंग से लूज नहीं कर पाते हैं, आपने अपने लाइफ में महसूस किया होगा, आपका ब्रेन उसे खट से लूज कर देता है। आपको पता ही नहीं चलता वेट लॉस कितनी जल्दी से हो जाता है हमारे केवल ब्रेन से। तो उसका सारा कारण क्या हो रहा है कि हम अगर न्यूरोसाइंटिफिकली देखेंगे, मेडिकल देखेंगे, तो हम लोगों ने अपने आप को इस तरह ट्रेन किया। मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं। हमारे ब्रेन में एक्चुअली यहाँ पे FP1 FP2 होता है। जैसे कई बार लोग आप देखें डिप्रेशन होता क्या है, तो जब व्यक्ति नॉर्मल होता है तो FP2 होता है। ओके, रोहित बोल रहे हैं कि सर मैंने 7 दिन में 7 केजी लूज किया। तो इन्होंने गैरी कास्परो को हराते हुए, गैरी कास्परो को 3 महीने लगा, लेकिन रोहित चौधरी अपना एक्सपीरियंस बता रहे 7 दिन में 7 केजी। कैन यू बिलीव इट? मतलब आप मैंने तो ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने 2 घंटे में अपने 2-3 केजी लूज कर जाते हैं, राइट? केवल और केवल इतना प्रेशर और इतना टेंशन लेते हैं। होता क्या है कि हमारे ब्रेन में यहाँ पे होता है FP1 FP2। जब FP2 होता है ऊपर होता है, FP1 नीचे होता है, तो आप पॉजिटिव सोचते हैं, आप नॉर्मल रहते हैं। यानी जैसे हम लोग हैं जो डिप्रेशन में नहीं गए हैं। लेकिन जैसे ही लोग व्यक्ति एक बार नेगेटिव सोचने लगा और सोचते रहता है, यानी वो अपने एमिगडाला को एक्टिवेट करे जा रहा है, DMN एक्टिव है, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिल रहा, उसको समझ में भी नहीं आ रहा क्या हो रहा है। धीरे से आपका हार्डवेयर चेंज होता है। धीरे से पहले एमिगडाला जो आपका कम एक्टिव होता था, अब हाइपर एक्टिव हो गया। पहले हाइपर था, हाइपर हो गया। ये FP1 ऊपर, FP2 नीचे। अब क्या हो गया है, आपके माइंड ने ब्रेन में एक हार्डवेयर चेंज कर दिया है, राइट? माइंड ने ब्रेन में हार्डवेयर चेंज कर दिया है। अब ये ब्रेन एक नया माइंड क्रिएट करेगा, वो की एंग्शियस फीलिंग का। समझिए, ध्यान सुनिए। माइंड क्रिएट्स ब्रेन, क्रिएट्स माइंड। आपके माइंड ने एक ब्रेन क्रिएट कर दिया है, वो ब्रेन एक माइंड क्रिएट कर रहा है, राइट? और ये जो माइंड जब में FP1 ऊपर हो जाता है, व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है मुझे डिप्रेशन थॉट क्यों आ रहा है। आप किसी डिप्रेस व्यक्ति से बोलेंगे तुम डिप्रेस क्यों, वो बोलेगा मैं खुद नहीं चाहता हूं मैं क्यों हूं डिप्रेस। उसको खुद नहीं पता है। आप किसी से बोलेंगे तुम इतना एंशियस क्यों, बोले मैं थोड़ी चाहता हूं मैं एंशियस हूं। लेकिन उसके माइंड ने, जो कि डिसीज्ड माइंड ने, जो कि DMN डोमिनेटेड था, उसने एक ब्रेन क्रिएट कर दिया इस समय, जो कि एक माइंड क्रिएट कर रहा है जिसको वो संभाल नहीं पा रहा है। ऑल ऑफ यू आर एग्रीइंग विद मी? आपका जो करंट माइंड है, जो ब्रेन क्रिएट कर रहा है, वो आपके पास्ट माइंड ने क्रिएट करके रख दिया है, राइट? एंड देयरफॉर जनरली इसमें क्या होता है, इस पूरे चक्कर में आप देखेंगे साइकिल में, हम लोग जनरली सेल्फिंग मोड में रहते हैं पूरे समय। केवल और केवल हमारे ब्रेन की जो मूवी चलती है, अपने माइंड में जो मूवी चलती है, उसका एक ही हीरो होता है, वो है आप, सेल्फिंग। बाकी सब आप देखते हैं कौन कैसा है पता नहीं आपको, आप उस मूवी में हीरो मेन किरदार निभाते हैं, राइट? I, me and mine, self is constructing largely in mind the brain prefrontal cortex। ये डिटेल है, राइट? प्रिंसिपल में आप ये समझ जाइए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। आई रिमेम्बर जब मैं अपने स्कूल डेज में था, आई यूज्ड टू बी फ्रॉम अ स्मॉल प्लेस कॉल्ड सतना। तो हमारे घर के सामने एक सीमेंट रोड जाती थी, लेफ्ट साइड एक पार्क था, राइट साइड ग्राउंड खाली था। तो लेफ्ट एंड राइट खाली था, सामने से एक रोड थी, और वो बहुत बढ़िया एरिया बन गया था मेरे क्रिकेट खेलने का। हम लोग क्रिकेट खेलते थे। मैंने एक दिन पहले सचिन को देखा था। सचिन ने बॉलर आ रहा था, सचिन ने बॉलर को बोला रुक जा, बॉलर रुक गया। सचिन बीच सेंटर पे गया, ठक ठक किया, और फिर बॉलर को बोला आजा। अगले दिन मैं मैच खेला था, हमारी बॉल टेनिस की थी, रोड सीमेंट की थी, पिच सीमेंट की थी। मैंने बॉलर दौड़ के आया, मैंने बॉलर का रुक जा। मैं बीच सेंटर पे गया, ठक ठक किया, वापस गया, बोला आजा। कोई बता सकता है मैंने ऐसा क्यों किया? Somebody can guess it out, why did I do that? कोई गेस कर सकता है? यस, बिकॉज ऑफ योर माइंड। देवकीनंद, क्या एग्जैक्टली क्या चल रहा था? सचिन वाली फील लेने के लिए होके रोहित बोल रहे हैं, यस गुड। और मैं 20 सेंटर जाके ठक ठक क्यों किया? क्यों करते हैं लोग? यू आर द हीरो। आप लोग समझ गए हैं।
एक्चुअली मेरी पिच तो सीमेंट की थी, बॉल टेनिस की थी, सचिन जब कर रहा था ग्राउंड था, वहां नमी होती है, बॉल ड्यूस या कॉक या उसकी होती है, वो सब चेक करना होता है। मेरे को पिच से कोई मतलब ही नहीं था, ना मेरे को फील्डर से मतलब, नहीं को बॉलर से मतलब था। मैं अपने वर्ल्ड में एक मूवी चला रहा था, सेल्फिंग मूवी, उसका हीरो मैं था, और वो कौन था? सचिन था। और मैंने बॉलर को रोका, मुझे किसी से मतलब नहीं, मैं अपने दिमाग में खुश था। आपने देखा होगा, एटलीस्ट आपको पता नहीं होगा, जब जॉन्टी रोड्स बहुत फेमस था, हम लोग स्क्वायर कट में खड़े होने की बहुत खुशी होती थी, और पूरे मैच में 1 या 2 बॉल आते थे स्क्वायर कट में, लेकिन बोर नहीं होते थे। क्यों? क्योंकि वहां स्क्वायर कट में खड़े होकर मैं अपने आप को जॉन्टी रूट सोचता था, और पूरा मैच में खुशी खुशी निकाल देता था। सो फ्रेंड्स, हम लोग कॉन्स्टेंटली एक सेल्फिंग मोड में चल रहे हैं। कई बार सेल्फिंग मोड में हम अपनी मूवी में हीरो बन जाते हैं, बढ़िया चलता है, सब पॉजिटिव रहता है, इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है। बट मोर और लेस, जैसे मैंने आपको उस दोस्त के बारे में बताया था जमशेदपुर का, उसने जब अपनी मूवी चलाई तो उसको लगा उस समय 12th में कोई प्यार नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, और उसे लगा वर्ल्ड इतना बेकार है कि उसे एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। He even tried attempting a suicide. हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली, सिमिलरली एक गर्ल ने सुसाइड किया था, उसने भी लेटर में लिखा था, nobody loves me, nobody cares for me, मैं बहुत लोनली फील कर रहा हूँ। आप देखिए, हम लोग ये मूवी चला तो देते हैं, खुश भी हो जाते हैं कई बार, लेकिन क्योंकि मूवी में केवल हम ही हीरो होते हैं और कोई हमें मतलब नहीं होता है, तो हम बहुत बार अकेला फील करते हैं, राइट? बहुत बार हम क्या अकेला फील करते हैं? रोहित बोल रहा है शर्लक होम्स की मूवी देखने के बाद वो अपने आप को शर्लक होम्स फील कर रहा था। दैट समटाइम विच इज पॉजिटिव, बट मैनी अ टाइम आप देखेंगे इस मूवी में, जो हम आई मूवी या मी मूवी शो चलता है हमारा, हम सब अकेले हो जाते हैं। तो कुछ समय तक तो हम उसको फ्यूल देकर खुशी खुशी जी लेते हैं, लेकिन थोड़े समय के जब वो फ्लिप मारता है, हम बहुत दुखी हो जाते हैं। और उस मूवी में कई बार, जैसे मैंने आपको बताया, नेगेटिव थॉट कैंसर की तरह फैल जाता है, राइट? जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा था। और डिप्रेशन केस में मैंने क्या बताया था आपको कि FP1 ऊपर चले जाता है, FP2 नीचे आ जाता है। FP1 ऊपर चले जाता है, FP2 नीचे आ जाता है। प्रैक्टिकली अब इस बंदे की जो मूवी होने वाली है, ही डजंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बिकॉज कुछ समय तो उसने अपनी मूवी चलाई, अब ब्रेन उसे मूवी दिखा रहा है। आपने द ब्यूटीफुल माइंड, अगर आपने मूवी देखी होगी, सम ऑफ यू हैव सीन द मूवी ब्यूटीफुल माइंड, ये फेमस नोबल लॉरिएट, क्या नाम था उसका, आई फॉरगॉट द नेम। अच्छा, मूवी देखिए, नाम क्या था उस नोबल लॉरिएट का? देवकी, अभिषेक, प्रियांशु, किसी को नाम याद है? ओके ओके, अच्छा, इन लोगों को याद ही नहीं है नाम। ओके, आई फॉरगॉट। इसकी थ्योरी आई थी, इकोनॉमिक थ्योरी हुई थी, इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स कंबाइन करके हुई थी, गेम थ्योरी थी, और इसको नोबेल प्राइज, जॉन नैश, राइट, नोबेल प्राइज मिला था। इसके ब्रेन ने एक्चुअली पूरी एक मूवी उसको दिखा रही थी। स्किज़ोफ्रेनिया पेशेंट जो हो जाते हैं उनको ब्रेन दिखाती, पूरी एक अलग ही मूवी चलती रहती है। फ्रेंड्स, कहने का मतलब ये है कि हम सबका, हमारा ग्रेटेस्ट वेल्थ होता है हमारा ब्रेन, हमारा माइंड। और इस समय करंट सिचुएशन में अगर हम उसको, जिस तरीके से हम लोग जिम जाते हैं अपने बॉडी को बिल्डअप करने के लिए, म्यूजिक सुनते हैं अपने आप को अच्छा फील करने के लिए, स्पा जाते हैं अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए, उसी तरीके से करंट सिचुएशन में जिस तरीके से वर्ल्ड में बॉम्बार्डमेंट हो रहा है इंफॉर्मेशन का, एक्सप्लोजन का, अगर हम अपने ब्रेन को भी हमें वैसे ही ट्रेन करना है, ब्रेन के लिए हमें मेंटल जिम करना है, राइट? अभी मैं आपको अगला चीज दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सो मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन क्वाइट सेल्फ अवेयरनेस and gives us a relief from selfing. The negative self-talk about who am I, what I do, and what other people think of me ceases. We quit selfing. So when brain enters a state of hyperfertility and we are no longer enmeshed by the local self, we gain perspective and we realize we are more than that. Right? आपको थोड़ा सा भी समझने में दिक्कत आएगी। सिंपल टर्म्स में बताऊंगा क्या करता है। जैसे ही आप मेडिटेशन करते हैं, आपका ये जो एमिगडाला हाइपर एक्टिव होता है ना, सब रुक जाता है। ये आप खुद एक्सपीरियंस किए होंगे। सम ऑफ यू हु हैव चैंटेड वेरी नाइसली, चैंटिंग करने से पहले कई बार पूरा दिमाग इधर से उधर, उधर से इधर बात कर रहा है। और अगर आपने अच्छे से मेडिटेशन कर लिया, चैंटिंग किया, द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ आवर चैंटिंग, वेंकटेश ने कहा यस, किस किस का एक्सपीरियंस है ऐसा? वेंकटेश ने कहा मेनी टाइम्स, गुड, राइट?
इवन स्पेशली जब आप आदित्य कह रहा है ऑल स्ट्रेस कम टू आइज, ओके, अभिषेक यस, देवकीनंद यस सर आई एक्सपीरियंस्ड, आप देखेंगे सबसे पहली चीज होती है आपका एमिगडाला स्टॉप हो जाता है काम करना, राइट? इसीलिए उसका वर्ड ही होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन मतलब क्या, आप एक ऐसे, एक्चुअली इसके पार्ट 2 में जब मैं आपको अल्फा बीटा गामा थीटा वेव्स के बारे में बताऊंगा, आप एक्चुअली अल्फा वेव से गामा वेव्स में चले जाते हैं। उस जोन में जाते ही आपका एमिगडाला जो हाइपर एक्टिव था पूरा रिलैक्स हो जाता है, काम हो जाता है। जो आपके एमिगडाला हाइपर एक्टिव होने के कारण जिसने नेगेटिव मेमोरीज को इग्नाइट कर देता था और जिससे आपको पूरा एक परसिस्टेंट एंशियस थॉट्स और फीलिंग्स आ जाते थे, वो सब रुक जाते हैं। एक डिप्रेसिव फीलिंग्स बन जाती थी, सब रुक जाते हैं। इसीलिए अगर जो आप लोग को आपके सीनियर्स ने या इवन मैं रेगुलरली ये हरे कृष्णा मेडिटेशन करता हूं, इसका सबसे पावरफुल इफेक्ट आप खुद ही महसूस करेंगे जब आप उसको बहुत अच्छे से करेंगे। अच्छा, अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तब आप क्या करेंगे, आप साइकिल को चला रहे हैं वैसे ही, आप एंशियस हैं, आप चैंटिंग कर रहे हैं, आप ठीक से कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, तो आपकी नेगेटिव मेमोरीज आएंगी, ये ऊपर जाएगा, एंशियस थॉट आएगा और डीएमएन में, यानी आप अपने मेडिटेशन के दौरान भी पूरे एंशियस चल रहे हैं, आप केवल और केवल, क्योंकि आप फोकस नहीं कर रहे हैं चैंटिंग पे। जैसे ही जो भी, मेरा बता रहा हूं आपको, जो भी मेडिटेशन को ठीक से करेगा उसका एमिगडाला बंद हो जाएगा, उसका FP1 वापस नीचे आएगा, FP2 वापस ऊपर जाएगा। और कंसिस्टेंटली कोई ये करता रहेगा अच्छे से मेडिटेट, उसका डिफॉल्ट एमिगडाला ही वो स्टेट हो जाएगा वेयर हिज लाइफ विल बिकम ए मेडिटेशन। आप समझ रहे हैं? अभी हमको मेडिटेशन करना पड़ता है कुछ समय के लिए और उससे हम शांति मिलती है। जब आप इसको रेगुलर करते रहेंगे, से फॉर 6 मंथ, आप देखेंगे कि आपका लाइफ ही एक मेडिटेशन बन जाएगा। दैट मीन्स यू आर एक्चुअली नॉट नाउ अंडर दी मी शो में। आप मी शो में नहीं रहते हो, आपका मी शो स्टॉप हो जाता है, आपकी मूवी बंद हो जाती है, आप सेल्फिंग या सेल्फी से बाहर निकल जाते हो, राइट? हमें क्या लगता है, सी आप लोग को मैं थोड़ा सा मैं एंड करके हम करेंगे, वो ये पढ़ेगा इसको। The inner speech. हाँ, In meditation, you let go of the complex world outside in order to reach a powerful peace within. In high हाँ, value that gives to one's own thought is the main obstacle to silent awareness. Wisely removing the importance that one gives you thinking and realizing the greater accuracy of silent awareness opens the door of inner silence. राइट? कहने का मतलब है हमारे ब्रेन में अभी आपको इनर साइलेंस समझ में आया क्या है? इसको मोहित, इसको आगे पढ़ेंगे। ओके, 1 मिनट, सेम चीज है। हाँ, इसको पढ़िए। Okay, sir. In meditation, you let go of the complex world outside in order to reach a powerful peace within. Sometimes we assume it is through the inner complementary that we know the world actually. That inner peace does not know the world at all. It is the inner speech that spins the delicious. I'm mispronouncing. I don't. हाँ, delusion. That cause suffering. Inner speech causes us to be angry with our enemies and to form dangerous attachment to our loved ones. Inner speech causes all of life's problem and constructs fear and guilt, anxiety and depression. It builds this illusion as deftly as skillful actors manipulates the audience to create terror or fear. So if you seek truth when meditating, value silent awareness more important than any thought. Right? तो देखिए, हम लोग के लाइफ में हमको क्या लगता है हमेशा कि हम अपने सोचने से हम चीजों को सॉल्व कर लेंगे। हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली बातें करता रहता है, राइट? और हमें लगता है शायद, जैसे मानी फॉर एग्जांपल, मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूँ, ये मेंटल वर्ल्ड कैसे क्रिएट होता है। हम, एक बार मेरे साथ हुआ था, मैं व्हाइल आई वाज एक्चुअली एट वन प्लेस जहाँ पे बहुत सारे हमारे सब साथ साथ थे, आपके सीनियर जैसे, और वहां पे मैंने देखा एक व्यक्ति ने मुझे इस तरह देखा, मेरे उससे जमती नहीं थी, तो मैंने देखा कि ये मुझे ऐसे देख रहा है, इसका मतलब है कि ये मेरे से गुस्सा है। आई क्रिएटेड हिम एज माई एनिमी।
फिर मैंने उसको देखा वो किसी और से बात किया, तो मुझे लगा अरे इसने लगता मेरे बारे में उसको बताया होगा। नाउ एनिमी नंबर 2, ये भी मेरा एनिमी है। फिर मैंने कुछ दिनों बाद देखा उस व्यक्ति को मेरे तरफ आते हुए लेकिन मुझे नहीं देखते हुए, तो मेरा कंफर्म हो गया ही इज एनिमी नंबर 2। फिर तीसरे दिन देखा ये सब लोग एक ग्रुप में घूम रहे हैं, पार्टी हो रही है, मुझे नहीं बुलाया। मैंने कंफर्म कर लिया कि ये सब के सब मेरे अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं। आप सबका एक्सपीरियंस है, हम सब लोग कॉन्स्टेंटली इनर स्पीच में रहते हैं और वो इनर स्पीच हमें लगता है कि हमें नॉलेज मिलता है, बट एक्चुअली दैट इज द कॉज ऑफ सफरिंग। सो मेडिटेशन मीन्स व्हाट, यू स्टॉप दिस इनर स्पीच, यू जस्ट हियर। जैसे अभी जब आप लोग अभी मेरे साथ चैंटिंग मेडिटेशन करेंगे, यू साइलेंट, यानी अपने इनर स्पीच को साइलेंट करना है, जस्ट बी अवेयर ऑफ चैंटिंग। इवन आपको मेडिटेट करते हुए, चैंटिंग करते समय ये भी नहीं सोचना है कि चैंटिंग कैसी है, या ये भी नहीं सोचना है कि कितना समय बाकी चैंटिंग करने में, अरे अब तो खत्म होने वाला है। ये सब इनर स्पीच है। या आप भगवान कृष्ण का नाम ले रहे हैं, राम का नाम ले रहे हैं, और आपको लग रहा है कृष्ण ऐसे हैं, राम ऐसे हैं, राइट? ओके, आप सबका मेरे ख्याल से कॉलेज है, सो वी मे चैंट फॉर सम टाइम नाउ, राइट? तो हमारे लाइफ का जो रियल गोल है, दैट इज स्टॉप द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड आउटसाइड, स्टॉप द इनर वर्ल्ड, दैट इज इनर स्पीच, एंड साइलेंटली, यानी एकदम शांत होकर ब्रेन के इनर स्पीच को रोक कर जस्ट हियर, राइट? जस्ट हियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम सबके लिए क्या है इस समय? ओके, नो इश्यू, आप लोग का क्लास होने वाला है, सो वी विल स्टॉप हियर, विल चैंट फॉर 1 राउंड। लेके आई, मेरा बाहर रखा है, राइट? सब लोग उठा लीजिए। आपको जैसे मैंने बताया है, आपका बाय डिफॉल्ट एमिगडाला बहुत एक्टिव रहेगा। बाय डिफॉल्ट आप जब चैंटिंग करना, मेडिटेट करना चालू करेंगे, आपके थॉट्स, नेगेटिव मेमोरीज एक्टिवेट हो जाएंगे, एंग्शियस फीलिंग आएगी। लेकिन आपको क्या करना है, उसमें इनर स्पीच चालू होगा, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे टॉक्स चालू हो जाएंगे। आपको क्या करना है, इस पूरे दौरान, इनर स्पीच के दौरान, बिल्कुल भी अपने इनर स्पीच के तरफ अटेंशन नहीं देना है। आप इनर स्पीच आपके एक बबल की तरह रहेगी, अगर आप उसको अटेंशन देंगे तो कैंसर की तरह फैल जाएगी, राइट? अगर आप अटेंशन नहीं देंगे तो पानी में जैसे बबल उठता है ना, और उठ के फूट जाता है, राइट? फूट जाता है तो वो खत्म हो जाता है पानी में। उसी तरह हमारे थॉट्स जो होते हैं, इनर स्पीच होते हैं, वो बबल के समान होते हैं। अगर आप उसको अटेंशन नहीं देंगे तो वो अपने आप आएंगे और फूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, राइट? तो अभी हम लोग कुछ समय के लिए साइलेंटली, यानी साइलेंट यानी आउटसाइड एंड इनसाइड दोनों जगह साइलेंट बनाकर केवल और केवल अब चैंटिंग करेंगे, और केवल चैंटिंग के प्रति भी कोई भी स्पीच नहीं करेंगे कि कैसी चैंटिंग होती है, कितना समय बाकी है, क्या बाकी है। वी विल डू जस्ट 2-3 मिनट चैंटिंग। आपको 10 o'clock से पहले आपको बंद हो जाएगा, आई विल टेल इट, राइट? डोंट वरी फॉर दैट। एंड आपके क्वेश्चंस आप मुझे पोस्ट कर सकते हैं। सम ऑफ यू मे वांट टू टॉक टू मी, आपके सीनियर्स मेरे नंबर दे सकते हैं, राइट? एंड वी मे सम अदर टाइम डिस्कस द क्वेश्चंस। सो जस्ट चैंट राइट नाउ। अमिगडाला को आपको हाइपो करना है, साइलेंटली आपको बस सुनना है और केवल सुनने में फोकस करना है। आउटर एंड इनर स्पीच दोनों ऑफ करना है, इवन चैंटिंग के बारे में नहीं सोचना है। सो वी जस्ट चैंट। सब लोग मेरे साथ बोल सकते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधारा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। So now when I am chanting, you hear my chanting. If some of you want to open your speak, unmute yourself and chant, and just focus in chanting. ये समझिए कि अगले 2 मिनट आप मेडिटेट कर रहे हैं, कोई स्पीच नहीं। और अगर आप मेडिटेट अच्छे से कर लेंगे तो आप पूरे दिन भी अच्छे से मेडिटेट कर पाएंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप में से कुछ लोग अपने आप को अनम्यूट करना चाहें तो अनम्यूट कर लें, या वीडियो ऑन करना चाहें तो वीडियो ऑन कर लें, so that we all can actually do some meditation together. मेरे साथ आप कर सकते हैं, वीडियो ऑन कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, that would be nice. Okay. हरे, और अनम्यूट कर सकते हैं जो लोग करना चाहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप चैंटिंग करें, इवन ये थॉट आए कि कुछ सोचना है कि नहीं सोचना है, ये भी नहीं सोचना है, कितना समय बचा है ये भी नहीं सोचना है, ये भी नहीं सोचना है कि मुझे नहीं सोचना है, बस अवेयर होइए कि आप चैंटिंग है और चैंटिंग करते रहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को somebody all of you will be अच्छा लगा किसी को? रोहित, you want to say something? Yeah, sir. I हाँ feel much better than previous. हाँ, right. Anybody else want to speak something? Mohit, Yes, sir. It was a great experience right? from previous तो session. अभी आपके पास समय मेरे पास कम था, कैलकुलेशन थोड़ा गड़बड़ हो गया, नहीं तो आपको बहुत अच्छे से मैं चैंटिंग कराता, बहुत अच्छे से। जस्ट 1 मिनट, बहुत अच्छे से मैं आपको चैंटिंग कराता और आपको बहुत अच्छा फील होता। मैं आपके साथ एक एक्चुअली यूट्यूब की लिंक शेयर कर रहा हूँ, सम ऑफ यू मे वांट टू नो मोर, कुछ चीजें उसमें हैं, कुछ चीजें आप लोग embrix.org
राइट, ambrix.org, यहाँ जाकर आप देख सकते हैं. एंड डोंट वरी, वी विल हैव फर्दर सेशन, तो मैं आपको और रिलेट करेंगे. लेकिन ओवरऑल आप ये समझिए कि आपको मेडिटेट ऐसे करना है कि आपका एमिगडाला पूरी तरीके से शांत हो जाए. आप जैसे ये करेंगे, आप देखेंगे आप इस ब्रेन, जो हमारा बिगेस्ट वेल्थ है, उसको कैप्चर कर लेंगे. राइट, सो वी हैड लेस टाइम, नेक्स्ट टाइम समटाइम वी विल हैव बेटर रिहर्सल फॉर चैंटिंग, और अनदर क्लास आपके सीनियर्स कराएंगे तो हम लोग करेंगे. ध्यानेश्वर ने कहा नाइस फीलिंग कीपिंग काम. राइट, सो सी यू टिल देन. मेरे ख्याल से आपका क्लास है, सो होस्ट कैन टेक इट अप, व्हाट नेक्स्ट टू डू. ओके, Thank you so much, Ashish sir. Really grateful for you to explaining all the concepts of working of brain and everything in such a precise detail, and so simply all the concepts were conveyed. So I'm pretty sure that all students must have felt really great to know about what they are doing from so long time, and it's really great to know about chanting in such a scientific manner. And I'm sure it will help all of them to continue with great enthusiasm and with focus to shut down their amygdala and and being more and more positive and chant nicely. Thank you so much, Ashish sir. Thank you for your time. Thank you for explaining all this in such a great and precise detail. Thank you so much, sir. see you everybody. Thank you. Thank you all of you also to join. So now we can continue for the class. Thank you so much. Your college class. Thank you.